قدوس مہربان خدا یسوع مسیح ناصری، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتا ہوں رب الفاظ۔ میں اپنے آپ کو، اپنی سوچوں خیالوں کو خداوند تیرے تابع کرتا ہوں رب الفاظ۔ تو خداوند میرے ساتھ ہو اور حاضر جماعت کے ساتھ ہو، اور جتنے بھی خداوند تیرے بیٹے تیری بیٹیاں آن لائن جوائن کیے ہیں خداوند ان کو برکت دینا اس کلام کے وسیلہ سے، اور خداوند جتنے اس کلام کو بعد میں سنتے ہیں سب کے لیے یہ کلام باعث سے برکت ہو، مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے آمین۔ ہلیلویا۔ تو یہ برکتیں جتنی بھی بلیسنگز ہیں، برکتیں ہیں، یہ کس کے وسیلہ سے ہیں؟ اب آپ بائبل مقدس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، شروع سے لے کر اینڈ تک پڑھیں تو بائبل مقدس کا دار و مدار جو ہے پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک جو ہے آپ دیکھیں تو آپ کو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ نظر آئیں گے، یسوع مسیح کی قدرت نظر آئے گی، یسوع مسیح خدا کا پرپس۔ جب جیسے ہی آدم اور ہوا سے گناہ ہوا اور اس کے فوراً بعد ہی خدا کا پلان جو ہے دوبارہ بحالی کا شروع ہو گیا۔ خدا نے پلان کر دیا کہ ان کو اب واپس کیسے لے کر آنا ہے۔ ہلیلویا۔ تو خداوند یسوع مسیح کا پلان جو ہے، خداوند یسوع مسیح کی قدرت جو ہے وہ ہمیں شروع ہی سے نظر آتی ہے، اور آج ہم کچھ برکتوں کو، کچھ بلیسنگ کو جو ہماری زندگی میں ہیں تو ان کا سورس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہلیلویا۔ تو پھر جو سورس ہے جہاں سے برکتیں آتی ہیں ہمیں اس کے پاس آنا ہے۔ آمین۔ ہلیلویا۔ جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ نل کے پاس جاتے ہیں، پانی کے پاس جاتے ہیں، جو سورس آف واٹر ہے، جو ہماری پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے، اس کے پاس جاتے ہیں۔ آمین۔ ہلیلویا۔ تو ہماری بلیسنگ کا ذریعہ کون ہے؟ یسوع مسیح وسیلہ بنا۔ تو پھر اگر یسوع مسیح وسیلہ ہے تو پھر ہمیں یسوع مسیح کے ہی پاس آنا ہے۔ آمین۔ تو آج ڈیفرنٹ وے میں ہم دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ کون سی بلیسنگ جو ہیں وہ ہمیں ہماری زندگی میں خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آتی ہیں۔ آمین۔ نو ڈاؤٹ کہ ساری ہی آتی ہیں، لیکن چند پر ہم غور کریں گے۔ آمین۔ تو بلیسنگ جو ہے، تو یہ بلیسنگ جو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے آتی ہے ہماری زندگی میں، تو یہ جو بلیسنگ ہے تو یہ ہماری زندگی میں یاد رکھیں کہ ہمیں ان کو جو ریئلائز کرنا، ان کو اپنی زندگی میں the purpose of this lesson is to get us appreciate some of blessing we have in Jesus Christ. Hallelujah. تو ہمیں خداوند یسوع مسیح میں آج کا جو پیغام ہے، آج کا جو لیسن ہے، اس سے ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہمیں ان بات کو ریئلائز کرنا ہے، اپریشیٹ کرنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ہم برکتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ آمین۔ تو یہ بلیسنگ جو ہیں یہ ہمیں اس سے پہلے کہ ہم ان برکتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں، ہمیں خداوند یسوع مسیح ہمیں اس طریقے پہچاننے کی، جاننے کی ضرورت ہے کہ پھر اگر یسوع مسیح ہی وسیلہ ہے تو پھر ہمیں یسوع مسیح میں کیسے آنا ہے، کس طریقے سے یسوع مسیح کی ان برکتوں کو حاصل کرنا ہے۔ آمین۔ ہلیلویا۔ اور پھر ہمیں ان برکتوں کو کیا کرنا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ آمین۔ جس طرح ہم نے برکتیں شیئر کی، ذیشان نے اپنی برکتوں کو شیئر کیا، بھائی مون نے اپنی برکتوں کو شیئر کیا، میں نے اپنی بلیسنگ کو شیئر کیا، اور کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر آ کر اپنی گواہیاں شیئر کرتے ہیں، برکتوں کو شیئر کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے خدا کی دی ہوئی برکتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ آمین۔ ہلیلویا۔ تو بائبل مقدس میں سے ہم نے یہ باتیں سیکھی، اور پھر کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ان کرائسٹ ساری برکتیں، روحانی برکتیں، جتنی بھی روحانی برکتیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں آنے سے ملتی ہے۔ یسوع مسیح کے بغیر کوئی برکت نہیں ہے، یسوع ہی وسیلہ ہے،
یسوع مسیح نے خود کہا ہاللویا ہاللویا آمین آمین یسوع مسیح ہی وسیلہ ہے ان کرائسٹ ایوری اسپرچل بلیسنگ ہاللویا ہاللویا کتنی ساری بلیسنگ جو ہیں ہاللویا تو کیا لکھا ہے کہ آؤٹ آف کرائسٹ نو اسپرچل بلیسنگ کہ یسوع مسیح کے باہر رہ کر یسوع مسیح کے بغیر یاد رکھیں زندگی میں کوئی نعمت اور کوئی برکت نہیں ملتی جب ہم یسوع مسیح کے باہر ہوتے ہیں بائبل مقدس اس بات کے لیے کہتی ہے جب بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں افسیوں کا خط لکھا ہے افسیوں پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں جی کیا لکھا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکات بخشی ہاللویا آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی ہاللویا ہاللویا آمین آمین کتنی قسم کی ہر ہر طرح کی برکت جو ہے کس کے وسیلہ سے لکھے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں ہاللویا برکتیں کس میں ہیں مسیح میں بلیسنگ کس میں ہے مسیح میں تو روحانی برکتیں مسیح میں آسمانی برکتیں مسیح میں ہاللویا آمین آمین تو برکتیں کس کے وسیلہ سے ہیں مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہیں جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں ہاللویا مسیح میں آنے کے بغیر یاد رکھیں میں نے پہلے بھی اس دن بتایا کہ یسوع مسیح کو پہن لینا جو ہے پروفیٹیبل ہے somebody can open the door please تو مسیح میں آنے سے برکتیں ہیں ہاللویا مسیح میں آنے کے پہلے کوئی برکتیں نہیں ہاللویا میں گواہ ہوں ایلڈر صاحب گواہ ہیں ہاللویا آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں ایلڈر صاحب مجھے جانتے ہیں میں کئی بار شیئر کر چکا ہوں جب ہم خدا میں نہیں ہوتے جب تک ہم مسیح کو نہیں پہنتے جب تک ہم مسیح میں نہیں آتے تب تک ہماری زندگی میں برکتیں نہیں آ سکتی ہاللویا اگر برکتوں کو پانا ہے اگر بلیسنگز کو پانا ہے تو ہمیں مسیح میں آنا پڑے گا ہاللویا آمین پھر مسیح دیکھیں آپ کو ہاں فائلنگ کلرک تو چوک کے انڈر رائٹر بنا دینا ہاللویا آمین پریز گاڈ جب میں پاکستان آیا تو میرے پاس کوئی نالج نہ تھا یہاں پہ محنت مزدوری کرنے والا محنت مزدوری سے کرنے والے کو وہاں سے اٹھا کر دیہڑیاں کرنے والے بندے نے چوک کے یہ سوچو بھی نہ عام بندہ سوچتا بھی نہیں میرے پاس جتنے بھی بیٹھے ہیں سب ماسٹر ڈگری سے سب ماسٹر ڈگری کوئی امریکہ سے پڑھ کے آیا کوئی نیوزی لینڈ سے پڑھ کے آیا کوئی کہاں سے پڑھ کے آیا کوئی کہاں سے پڑھ کے آیا اور ان کے بیچ میں خدا نے اگر سرفراز کیا ہے ہاللویا تو یہ خدا کی قدرت ہی ہے ہاللویا میری لیاقت نہیں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے مسیح میں ہونا ہاللویا تو مسیح میں آ جائیں تو ساری کی ساری برکتیں آ جائیں گی ہاللویا آمین پھر خدا بڑھائے گا گھٹائے گا نہیں ہاللویا آمین تو یہ مسیح میں آنے سے برکتیں ہیں تو نو اسپرچل بلیسنگ اف وی آر آؤٹ آف کرائسٹ اگر ہم مسیح سے باہر ہیں تو ہماری زندگی میں برکتیں نہیں ہیں یسوع مسیح نے کیا کہا ہاں
मैं दरवाजा यीशु मसीह ने क्या कहा? I am the door. आई एम द Door. हाँ बरकतां च दाखल होना है, आसमानी मकामां च दाखल होना है, हालेलुया। तो मैं डोर, हालेलुया, मैं दरवाजा हूँ, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा वो मैं दरवाजा हूँ। अगर बरकतों को पाना है, अगर जिंदगी को पाना है, खुशहाली को पाना है, बहाली को पाना है, तो आई एम द डोर। Door. डोर से क्या होता है? Entrance होती है। सामने लिखा है एंट्रेंस, हालेलुया। एंट्रेंस कौन है? खुदा ने यीशु मसीह है एंट्रेंस, Yes. हालेलुया। एंट्रेंस यीशु मसीह है। यीशु मसीह में दाखिल होकर, आमीन। फिर यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? आई एम द लाइट। हाँ, मैं नूर हूँ। दुनिया का मैं रोशनी हूँ, मैं नूर हूँ, रास्ता दिखाने वाला मैं हूँ, मैं हूँ। हालेलुया। बरकतों को, बस बरकतों का रास्ता दिखाने वाला, बरकतों को पाने वाला, हालेलुया। अगर किसी काम पे किसी जगह पे जाना है, अगर तुम राह ही नहीं पता है, हालेलुया, राह नहीं पता, किस तरीके से, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से बरकत को पाना है, किस तरीके से रिसीव को करना है बरकत को, तो यीशु मसीह ने कहा एंट्रेंस भी मैं हूं, और अगर आप चलोगे तो रास्ता भी, वो कहता मैं रास्ता बन जाऊंगा तुम्हारी बरकतों का, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? आई एम, The shepherd. फिर जब चलोगे तो फिर क्या करूंगा? टू गाइड एंड प्रोटेक्ट यू। खुदा कहता है कि तुम बरकतों को पाने के लिए जब निकलोगे, जब मेरे पीछे चलोगे, तो खुदा कहता है कि मैं फिर तुम्हारा रखवाला बन जाऊंगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करने वाला बन जाऊंगा, हालेलुया। बरकतों को पाने के लिए यीशु को अपना डोर मान लें। यीशु ही बरकतों का डोर है, यीशु ही रास्ता दिखाने वाला है, और यीशु ही गाइड करेगा, फिर वो आपको, आपकी रहनुमाई करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, हालेलुया, आमीन। तो फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? I am the way. आई एम द वे। वो खुद खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? रास्ता मैं हूँ, चरवाहा मैं हूँ। चरवाहा क्या करता है? हाँ, उनकी रहनुमाई करता है, उन्होंने मोड़ता रहता, इधर नहीं इधर जाओ, इधर नहीं इधर जाओ, हाँ। और फिर वो क्या करता है? उनकी रहनुमाई करता है और उनकी प्रोटेक्ट करता है। चरवाहे का असल जो काम है, अगर कोई भेड़िया आ जाता है, कोई खतरनाक जानवर आ जाता है, हाँ, दाऊद क्या कहता है? खुदा में मेरा जुबान है। हाँ, मेरा चुपान है। वो कहता है मैंने अक्सर जब जाति जोलिया से जंग लड़ने लगा, कहने लगा कि मैंने क्या किया है? शेर के मुंह में से मैंने, हाँ, ये है चरवाहा, हालेलुया। और आज हाँ, शेर, कौन सा शेर? बब्बर शेर की तरह, शेर नहीं, बब्बर शेर की तरह इब्लीस जो दौड़ता फिरता है, किसको खाए? हाँ, तो यीशु मसीह हमारा चरवाहा फिर बन जाता है। इसीलिए उसने कहा था कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, हालेलुया। जो क्या करता है? अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी देता है। हाँ, उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, Yes. हालेलुया, आमीन। तो यीशु मसीह ने कहा कि रास्ता मैं हूं, वो रास्ता जिसके बगैर कोई बाप के पास जा नहीं सकता, आसमानी बरकतों को पा, नहीं सकता। हालेलुया। तो यीशु मसीह है वो रास्ता, और यीशु मसीह ही उन बरकतों को वसीला हमारा बन सकता है, आमीन, हालेलुया। और फिर खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? हाँ, यीशु मसीह ने कहा मैं ऊपर से आया हूँ, हालेलुया, भेजा हुआ। मैं भेजा हुआ। ऊपर से आया हूँ, खुदा ने मुझे भेजा है तुम्हारी बरकतों के लिए, तुम्हारी ब्लेसिंग के लिए मुझे खुद खुदा ने भेजा है, हालेलुया, आमीन। तो हमारा खुदा जो है, हमें यीशु मसीह ही हमारी बरकतों का
वसीला है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? आई एम विद फादर। इसका मतलब क्या है? इन एग्रीमेंट With God. हालेलुया। Hallelujah. ये खुदा के साथ अब बाप का एग्रीमेंट है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं। यीशु मसीह खुदा या बाप के साथ कह के, यीशु मसीह आया मेरी और आपकी बरकत के लिए। यीशु मसीह आया मेरी और आपको बहाल करने के लिए। आमीन। फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब मूसा वहां पर गया, तो जब मूसा ने वहां पर बताया तो उसने कहा कि तुम कहना कि मुझे किसने भेजा है? मैं हूँ सो हूँ नहीं। मैं हूं सो हूं, उसने मुझे भेजा है। हालेलुया। आमीन। आमीन। तो यीशु मसीह वो है जिसकी पहले से नबूवतें की गई, Yes. जो आया हमारे लिए। आमीन। Amen. और फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं क्या हूं? क़यामत मैं हूं, क्या मतलब? रिजरेक्शन मैं हूं। हालेलुया। Hallelujah. तो जी उठने की यीशु मसीह जी उठा। हाँ, तो यीशु मसीह जी उठे का मतलब कि यीशु मसीह दोबारा वापस आने वाला है। हमारे पास जो जिंदा है उससे हम उम्मीद कर सकते हैं, वो हमारी उम्मीद है। हालेलुया। Hallelujah. कदी कहे मुर्दे को उम्मीद की थी? नहीं। हाँ जी, मुर्दे को क्यों जी? है कोई मुर्दा दे सकता है? नहीं। मुर्दे तो कोई उम्मीद है वो कुछ करेगा, मुर्दा नहीं करेगा। कौन करेगा? जिंदा करेगा। जिंदा करे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि क़यामत और जिंदगी, मैं हूँ। क़यामत रिजरेक्शन, जी उठा मैं हूं। हालेलुया। आमीन। Amen. और फिर खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? I am the bread of life. यीशु मसीह के ये दावे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। हाँ, अगर कुछ चाहिए तो वो मैं हूँ। मैं वो यहाँ। अगर कोई भूख प्यास रखे तो मैं हूँ। मैं ही आपको फीड करने वाला हूँ, मैं ही आपको देने वाला हूँ, मैं ही आपको आपकी खुराक देने वाला हूँ, वो चाहे रूहानी है या जिस्मानी है। तो ये सारी बरकतें हमें कहाँ से मिलती हैं? यीशु मसीह से। हालेलुया। ये सब खुदावंद यीशु मसीह ने ये सारे अल्फाज कहे। यीशु मसीह ने क्या कहा? दोहराएं मेरे साथ। आई एम द डोर, आई एम द लाइट, आई एम द शेपर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने कितने दावे किए? हाँ? तो ये सारे के सारे कभी किसी नबी ने ऐसे दावे नहीं किए। हालेलुया। किसी नबी ने ऐसे दावे नहीं किए। अगर किए हैं तो किसने किए? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने किए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने ये दावे किए। और जब हम यीशु मसीह में आना क्या है कि बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट, हाँ, मसीह में जब हम बैप्टिज्म लेते हैं। हालेलुया। मसीह में बैप्टिज्म लेना, बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग बैप्टिज्म तो लेते हैं लेकिन मसीह में मरते नहीं। हालेलुया। बैप्टिज्म तो लेते हैं, मसीह में आने से हालेलुया बरकतें कैसे मिलेंगी? इन टू क्राइस्ट। हाँ, क्या कहें? इन टू क्राइस्ट। क्या कहेंगे? इनटू क्राइस्ट। में नहीं, इन टू का मतलब कि जब एक हो जाना, मिक्स हो जाना किसी चीज का। कुछ चीजें होती हैं, मैं ये चीज क्या रखी है, ये एक मिनट दिखाएंगे मुझे इसमें थोड़ा सा पानी डाल।
जी ये दे देंगे, ये दे दें। हालेलुया। ये आपको नजर आ रहा है ना पानी? जी। तो ये जो मार्कर है किस में है? पानी में। Into water. ठीक है। नहीं, ये इनटू नहीं है। हाँ, यही मैं बताना चाह रहा था कि ये इनटू नहीं, ये इन है। हाँ, सिर्फ वाटर है। इन द वाटर है, इन टू वाटर नहीं है। हालेलुया। तो हमें क्या होना है? इन टू क्राइस्ट होना है। हालेलुया। क्या होना है? इन नहीं होना। कई लोग इन हो जाते हैं, इन टू नहीं होते। हालेलुया। बात की समझ आई? जी, समझ आई? तो पानी में जाना और बात है, पानी में चले गए, बैप्टिज्म ले लिया, लेकिन मसीह में नहीं आए। बरकतें कैसे मिलेंगी? मसीह में आने से। आउट ऑफ क्राइस्ट जो है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, देयर इज नो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। चाहे कितनी देर का बपतिस्मा ले लिया हो, चाहे 20 साल से बपतिस्मा ले लिया हो, 18 साल से बपतिस्मा ले लिया हो, लेकिन जब तक मसीह में नहीं आएंगे, हालेलुया, क्या लिखा है कि आउट ऑफ क्राइस्ट जो है देयर इज नो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। आउट ऑफ क्राइस्ट, मसीह में मिलना, घुलना जुलना। हालेलुया। वो कैसे? मसीह में वो एक हो गए शागिर्द। जब इंताकिया में गए, जब जाए तो वहां पर क्या हुआ? लिखा है कि उनकी बातों से, हालेलुया, उनके उठने बैठने से लोगों ने पहचान लिया। उन्होंने बताया कि नहीं असी कौन है। हाँ, उन्होंने बताया नहीं, लोगों ने खुद जान लिया कि ये मसीही लगते हैं। हालेलुया। कैसे? कि जब वो मसीह में घुल मिल गए, एक हो गए, मसीह में एक हो गए, उन्होंने मसीह को पहन लिया सही तरीके से। अब जो पहना है वही नजर आएगा। हालेलुया। जी जी, मेरे साथ हैं? अगर किसी को मैं पहले कहता होता हूँ, ठीक है ना, चुप करके उठे और हालेलुया। तो होश में रहना। हाँ, आमीन, हालेलुया। तो मसीह में आने से बरकतें हैं। शागिर्द जो पहना उन्होंने, हाँ जी, मैंने कौन सा कलर पहना है? तो ब्लू ही नजर आएगा। हालेलुया। अगर यहाँ पर मैंने मसीह को पहना हो, मसीह नजर आएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अगर यहाँ पर मैंने ये शर्ट पहनी है तो शर्ट नजर आएगी। अगर यीशु मसीह को पहना है तो यीशु मसीह नजर आएगा। आमीन, हालेलुया। तो मसीह नजर आएगा। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। हम उसकी मौत में शामिल नहीं होते। यीशु मसीह की मौत में, यीशु मसीह की मौत कैसे हुई? कभी सोचे यीशु मसीह की मौत कैसे हुई? जी बोले, कैसे हुई यीशु मसीह की मौत? सलीब पर हमारे गुनाहों की वजह से। भाई, हमारे गुनाहों की वजह से मौत हुई। हमारे गुनाह ही उसकी मौत का सबब बने। तो क्या हम, यीशु मसीह की मौत गुनाहों की वजह से हुई, तो क्या हम कभी गुनाहों के एतबार से मरे? बाइबल मुकद्दस कहती है गुनाह के एतबार से तुम्हें मर जाओ। हालेलुया। जब गुनाह की बारी आई ना, तुझी को मैं मर गया हूं, तो मरिया बंदा कुछ कर नहीं सकता। हालेलुया। मैं ये कर नहीं सकता, ते कर हो ही नहीं सकता जेड़ा गुनाह दे एतबार तो मर गया। ये है मसीह में मरना।
तो हमने बपतिस्मा लिया है मसीह में मौत, उसकी मसीह की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। लेकिन हम गौर ही नहीं करते। हम जब झूठ गुनाह कोई इस तरह का काम करते तो समझते याद ही नहीं होता कि यीशु मसीह मेरे वास्ते मरे हैं, तो मैं की करने लगा। मैं गुनाह के एतबार से मर चुका हूं, अब मैंने गुनाह नहीं करना। बाइबल में कहते क्या कहती है, पहला कुरिन्थियों जी क्या लिखा है, क्योंकि हम सब ने खा यहूदी हो, यूनानी, गुलाम हुआ आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा दिया, और हम सब को एक ही रूह पिलाया गया। हालेलुया, आमीन, आमीन। हम किसके लिए मसीह में कैसे हुए? एक बदन होने के लिए। आमीन, आमीन। कभी सोचे कि मैं मसीह का बदन हूं? जी कभी सोचे मसीह का बदन? हाँ सोचा कभी? भाई ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਗਾਲਾਂ ਕਰਾਂ? ਹਾਂ मसीह ਦਾ बदन कोई और काम इंज ਤੇ करदा है? तो फिर अगर हम कहें कि रूहानी बरकतें फ्रॉम ब्लेसिंग्स, ये ब्लेसिंग, तो ब्लेसिंग अगर आएंगी तब आएंगी जब हम मसीह में आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बरकतें कब आएंगी? जब हम मसीह में आ जाएंगे, एक बदन उसके साथ मिल जाएंगे। बाइबल मुकद्दस कहती है कि हम तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। हालेलुया, हमने क्या कर लिया? मसीह को पहन लिया। तो जब जो पहना है वो ही नजर आएगा। हालेलुया, जो पहना है वही नजर आएगा। अगर मसीह को हमने बपतिस्मा लेकर, इसका मतलब क्या कि हमने किसको पहन लिया? तो फिर हमारी जिंदगी से कौन नजर आना चाहिए? मसीह। अगर मसीह नजर आएगा तो मसीह की सारी दी हुई बरकतें भी नजर आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह की बरकतें, हाँ कैसे आना है? बैप्टाइज इन टू, जी मसीह में, और मसीह में शामिल, मसीह की मौत में शामिल होना। और फिर बाइबल कहती है कि हमको एक ही रूह पिलाया गया है, किस लिए? कि एक बदन होने के लिए, मसीह में होने के लिए, मसीह का बदन होने के लिए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह का बदन होने के लिए, मसीह को पहनने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो बरकतें मसीह में होने से आएंगी। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है जी? रोमन में क्या लिखा है? तीसरा उसकी मगर उसके सबब से जी उस मुखलसी के वसीला से जो यीशु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। मसीह में बरकत कौन सी? हाँ, मखलसी जो मसीह यीशु में है। हालेलुया। मैंने जहां पर ये हाईलाइट मैंने कुछ किए, इन पर गौर आप अपनी बाइबल में भी हाईलाइट कर सकते हैं, या आप अपने जहां पर नोट्स लिख रहे हैं वहां भी इसको हाईलाइट करें कि मखलसी किस में है? मसीह में। हालेलुया। हम मखलसी ढूंढते रहते हैं, हम नजात को ढूंढते रहते हैं, हम बहुत सारी ऐसी बातों से हम कहते हैं मैं फंसा हुआ हूं, मैं फलां मुसीबत में फंसा हुआ हूं। तो मखलसी किस में है? मसीह में मखलसी है। ये मखलसी की ब्लेसिंग, नजात, छुटकारे की ब्लेसिंग, आजादी, रिहाई की ब्लेसिंग किस में है? मसीह यीशु में। हाँ, दाऊद किस में है? हाँ, मसीह में। हालेलुया, मसीह में मखलसी है। हालेलुया, मसीह में नजात है, मसीह में मखलसी है। हालेलुया। और ये मखलसी कैसे? मुफ्त। हालेलुया, कैसे लिखी है? मुफ्त। अच्छे काम करने दी वजह हाँ, मुफ्त।
यीशु मसीह में आने से ये आगे मुफ्त में हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हालेलुया। फिर क्या लिखा है कि रोमन 6 में इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से और खुदा के एतबार से, हालेलुया, आमीन। अभी मैं क्या शेयर कर रहा था कि गुनाह में क्या करते हैं, मसीह गुनाह के एतबार से मरना है, लेकिन मसीह यीशु में जिंदा समझना है। तो इसका मतलब कि यीशु मसीह में जिंदगी है। हालेलुया। मैंने जो हाईलाइट किया है उसमें क्या है कि मसीह यीशु में जिंदा समझो। इट मीन्स कि यीशु मसीह में जिंदगी है। मसीह यीशु में जिंदगी है। जिंदगी की ब्लेसिंग जो है वो यीशु मसीह में है। तो यीशु मसीह में जिंदगी की ब्लेसिंग है। हालेलुया। और इसी रोमन 6 की 23 को हाईलाइट कर लें। क्या लिखा है कि क्योंकि गुनाह की मजदूरी मगर खुदा की बख्शिश मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। हाँ जी, जिंदगी और फिर हमेशा की जिंदगी यीशु में है। हालेलुया, आमीन। ये ब्लेसिंग जिसमें क्राइस्ट, इन टू क्राइस्ट। हालेलुया। किस में? बोले इन टू क्राइस्ट। इन क्राइस्ट नहीं, इन टू क्राइस्ट। हमेशा की जिंदगी यीशु में है। जिंदगी यीशु में है। शिफा यीशु में है। बरकतें यीशु में है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में ये देखे बड़ी खूबसूरत बात आगे जो आप पढ़ने वाले हैं 8वें बाब में। 8वें बाब में क्या लिखा है? पहले 8वें बाब की पहली आयत में, आप जो हैं उन पर खुदा का हुक्म नहीं। ओ प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। दिल्ली खुश है। हालेलुया। अब जो यीशु में जो यीशु मसीह में आ गया उन पर सजा का हुक्म नहीं। ओ प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब कि यीशु मसीह में आ जाए तो सजावा फिर खत्म। आमीन। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। कितनी बड़ी ब्लेसिंग यीशु मसीह में आने से। इन क्राइस्ट वी हैव दिस ब्लेसिंग। मसीह में ये बरकत है, मसीह में ये ब्लेसिंग है। अगर कोई मसीह में नहीं है तो उस पर सजा का हुक्म हो चुका जी। इसका मतलब कि उसकी अदालत भी हो चुकी है। उस पर सजा का हुक्म हो चुका है। लेकिन जो यीशु मसीह में है, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें इस बात के लिए किस कदर शुक्रगुजारी करनी है। क्या करना है जी? पहले नंबर पर हाईलाइट जो एरिया है, मखलसी यीशु मसीह में है। हाँ जी। और फिर जिंदगी है। हालेलुया। और हमेशा की जिंदगी है। और आखिरी बात कि उन पर सजा का हुक्म नहीं है जो मसीह में है। हालेलुया, जो मसीह में आ जाते हैं। हाँ? बाइबल कहती तुम फिर जिंदा ही समझो अपने आप। और वो बात जो खुदा यीशु मसीह ने कही कि जो मुझ पर ईमान लाता है तो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। ये वो बात है कि तुम फिर अपने आप को जिंदा ही समझो। हालेलुया, हमेशा की जिंदगी के वारिस ही समझो। इस बात को कबूल करो। ये ब्लेसिंग किस में है? मसीह यीशु में आने से। हालेलुया, मसीह यीशु में आने से ये ब्लेसिंग है। हाँ। और बाइबल में कहते हैं उसमें क्या लिखा है? ग्रंथियों, दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब उसकी 17वीं आयत में, इसलिए मसीह में है। हालेलुया, आमीन। इसका मतलब कि मसीह में जब आते हैं तो मसीह हमें नया बना देता है। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। अभी तक जो नया नहीं बना, नई जिंदगी, नई सोच, नया ख्यालात, नई बातें अगर किसी की लाइफ में अभी तक अगर नहीं है, इट मीन्स कि वो फिर अभी तक मसीह में ही नहीं है। जो मसीह में आ जाता है उसकी जिंदगी चेंज, नया मखलूक, नई दुनिया उसकी। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। ये बरकतें मसीह में आने से हैं। हालेलुया। हालेलुया। और नेक्स्ट क्या है? मतलब इसी ये 5वें बाब की 19वीं आयत में मतलब ये कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया हाँ और उनकी तस्वीरों को उनके जिम्मे ना लगाया और उसने हमें सौंप दिया। आमीन, हालेलुया। तो इसमें कौन सी बात हाईलाइट मैं करना भूल गया? तो क्या कि यीशु मसीह के वसीला से दोबारा मिलाप हो जाता है। यीशु मसीह हमारा मिलाप करवा देता है। यीशु मसीह से पहले कितने नबी आए? बहुत सारे नबी आए, हमें सबके नाम भी नहीं आते। हाँ? नाम नहीं आते, लेकिन कोई भी खुदा बाप के साथ मिलाप ना करवा सका। हालेलुया। हालेलुया। ये कुदरत, ये बहाली की कुदरत सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह में है। उसी ने दोबारा बहाल किया, उसी ने दोबारा मुलाकात करवाई। हालेलुया। हालेलुया। आज हम बड़ी दलेरी के साथ अपने खुदा बाप के सामने आ जाते हैं। हालेलुया। हाँ, दलेरी के साथ, हाँ, फजल के तख्त के सामने हम बड़ी दलेरी के साथ आ जाते हैं। आमीन। और इसका वसीला कौन बना? यीशु मसीह ने मिलाप करवा दिया। मिलाप करवाने की बरकत यीशु मसीह के वसीला से है। आमीन। छठा कलमा किसके पास है? तो यीशु मसीह ने क्या करवाया? हाँ, तो किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से क्या हुआ? मिलाप हुआ। दुनिया का मिलाप करवा दिया उसने। आमीन, हालेलुया। तो वसीला कौन है? यीशु मसीह वसीला है। हाँ, और गलतियों में क्या लिखा है? और ये उन झूठे भाइयों के सबब से हुआ। हाँ, झूठे भाइयों के सबब से क्या हुआ? जो छुप कर दाखिल हो गए थे, हाँ, घुस आए। ताकि इस आज़ादी को जो हमें मसीह यीशु में हासिल है, जासूसों के तौर पर दरियाफ्त करके हमें गुलामी में लाए। कुछ लोग ऐसे हैं झूठे भाई, हाँ, झूठे भाई जो दाखिल हो जाते हैं, मसीह में होते नहीं हैं। दे आर नॉट इन क्राइस्ट। वो मसीह में नहीं होते। जो आकर हमारी आजादी को क्या कर देते हैं? वो गुलामी में दोबारा। हाँ? कौन सी गुलामी में? गुनाह की गुलामी में। यीशु ने हमें आजाद किया है। तो इसको हाईलाइट कर दें कि यीशु मसीह के वसीला से हमें आजादी मिलती है। ये बरकतें लिख रहे हैं ना, यीशु मसीह के वसीला से। तो यीशु मसीह के वसीला से हमें आजादी मिलती है। हम गुलामी से छूट जाते हैं, गुनाह की गुलामी से छूट जाते हैं, हम बीमारियों से छूट जाते हैं, इब्लीस के चुंगल से छूट जाते हैं, बुरी महफिलों से छूट जाते हैं। हालेलुया। बुरी रिफाकतों से छूट जाते हैं। हाँ? ये किसने हमें छुड़ाया है? हम में लियाकत ना थी, हम में कोई खूबी ना थी। हम बल्कि क्या करते हैं? हम खुद जाकर फंसते हैं उसमें। बाइबल मुकद्दस ने, खुदावंद यीशु मसीह ने इसके लिए, ऐसे लोगों के लिए जो दोबारा दलदल में जाते हैं, उनके लिए सूरनी का, कि जो क्या करती है? उसकी रगबत जो है वो कीचड़ होता है।
गंदगी होती है। और जो शख्स इस तरह की फितरत रखता है, बार बार फिर उससे गुनाह हो, इधरों माफी मांग ली, उधरों फिर वही काम। अभी खुदा की हजूरी में माफी मांगी, यीशु ने माफ कर दिया। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। जब कोई कहता मेरे दुआ करो तो सारे मिलके दुआ की थी, तो यीशु ने की कर दिता, आई डोंट नो कि एदी सुनी किसी दी भी सुन के यीशु ने की कर दिता, तो बाहर निकल के फिर वही काम। इसका मतलब कि तेरी फितरत क्या है, ऐसा करने वाले इंसान, तेरी फितरत जो है उस सूरनी की मानंद है कि जिसको नहलाया जाता है, तेरे गुनाह माफ हुए, हाँ, बाहर जाके तो फिर वही काम करना, फिर झूठ, फिर फरेब, फिर वही गल्ला, फिर पुरानी जिंदगी। हाँ, तो इसीलिए तो यीशु मसीह ने बार बार जिसको भी माफी दी, यीशु मसीह ने कहा कि जा दोबारा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी हमारा खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है कि हम बरकतों को अपनी जिंदगी में कायम रखें। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो याद रखें कि इस चीज से भी चौकस रहना है कि कोई आकर जसूसों की मानद आकर हमारे अंदर कोई ऐसा कड़वा बीज ना बो दे, हमें दोबारा गुनाह में न ले जाए, दोबारा गुलामी में न ले जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने तो हमें क्या किया है, आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग आजादी ने, अच्छा चल ठीक है जाइए तो भावें ना जाइए, बपतिस्मा ले लिया, हो गए आजाद। हम बाइबल स्टडी में सीख रहे थे कि एक मसीही किससे आजाद होता है, भाई मून, हाँ, किस चीज से आजाद होता है, हाँ, बाइबल स्टडी में जो सीखा है, किससे आजाद होता है, भाई शमस ने सुना भी नहीं मेरे, हाँ, गुनाह से तो आजाद होता है लेकिन खुदा की खिदमत से आजाद नहीं होता। याद रखिए, एक जिम्मेदारी आयद हो जाती है उस पर जिम्मेदारी आयद हो जाती है खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने की। यीशु मसीह ने उनको निजात दी, ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है ईमान ले आए हो, मेरे शागिर्द भी बन गए, सारा कुछ ठीक है, चल ठीक है मौजा करो। यीशु मसीह ने क्या कहा, जाओ और जाकर सब कौमों को क्या बनाओ, और जो ईमान लाए उसको बपतिस्मा दो। हालेलुया। इट मींस कि हम यीशु मसीह को पाकर हम गुनाहों से तो आजाद हो जाते हैं लेकिन खुदा की खिदमत से आजाद नहीं होते। हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आयद हो जाती है, चाहे छोटे लेवल की हो। याद रखिए, जितनों ने बपतिस्मा लिया है, बड़े आजाद ना फिरो प्लीज। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कलाम, छोटे से छोटा कलाम जरूर शेयर करो। जरूरी नहीं कि बहुत इतना लंबा लेक्चर दो। ईमान से दुआ करके, मैंने कई बार कहा है, दुआ करके एक आयत ही शेयर कर दो। हालेलुया, आमीन, हाँ, आमीन, निगहबान भाई, निगहबान की पोस्ट सबसे ज्यादा आती है। हालेलुया, दुआ भी कराया कर। हाँ? जब आपने पोस्ट करनी है किसी को भी, चर्च राफा के अलावा भी, जिसको पोस्ट शेयर करते हैं, जिस किसी के साथ कलाम शेयर करते हैं, आप चंद लम्हे लंबी नहीं, बैठे बैठे ऑफिस में बैठे, दफ्तर में बैठे, वर्कशॉप में बैठे, कहीं पर भी हैं, खुदावन मैं तेरे यीशु नासरी नाम से अपने इस भाई से, इस बहन से कलाम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ इतना कह कर ईमान से, हालेलुया। उसने क्या कहा सूबेदार ने, खुदावन तू ए तू कह ही दे, हालेलुया, तो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसको ईमान से लिया करें। हाँ, हालेलुया। क्योंकि अभी हमने पीछे क्या सीखा कि हम खुदावन यीशु मसीह में शामिल हुए, यीशु मसीह का बदन होने के लिए। हालेलुया। हम क्या हैं, यीशु मसीह के, हम यीशु मसीह का बदन है। अगर कोई मसीह में है
तो मसीह का बदन है, तो मसीह का बदन जो कहेगा वो हो जाता है। हालेलुया। लेकिन उस पीक पे, उस लेवल पे, उस ईमान के साथ कहें खुदावंद ये मैं पोस्ट, ये कलाम, पहले आप ही भी पढ़ना है कि लिखे की ऐ नहीं है कि आया तो फॉरवर्ड कर चुके आया तो अगो पता नहीं लिखे की है की नहीं लिखा, गौर नहीं किया, पढ़ते भी हैं, पढ़ा करें उसको, एक लम्हा पढ़ के आगे शेयर करनी है तो शेयर करें, कहें खुदावंद मैं ईमान के साथ, अपनी इस बहन के साथ, अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ खुदावंद ये मैं कलाम करता हूं। हालेलुया। और आप अगर डेली ये प्रैक्टिस करेंगे, द डे विल कम he will be also into Christ। हालेलुया। वो भी मसीह में आ जाएगा। हालेलुया। आमीन। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, किया करें ऐसा। आमीन। ये ब्लेसिंग खुदा की तरफ से है। हालेलुया। तो बाइबल में कहते हैं, उसमें क्या लिखा है? गलतियों के खत में क्या लिखा है कि तो भी ये जानकर कि आदमी अमाल से नहीं बल्कि, हालेलुया। तो यीशु मसीह हमें रास्तबाज ठहरा देता, ये बरकत खुदा की तरफ से, यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। यीशु मसीह के वसीला से हम क्या ठहर जाते हैं? हम रास्तबाज बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मसीह के वसीला से, आसमानी ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है। आमीन। यीशु मसीह के वसीला से हम क्या बन जाते हैं? रास्तबाज बन जाते हैं। यीशु मसीह के वसीला से, हाँ जी, हम नया मखलूक बन जाते हैं। पुरानी चीजें जाती रहती हैं। मसीह के वसीला से हमारा क्या हो जाता है? मेल मिलाप हो जाता है। और फिर मसीह के वसीला से जी आजाद हो जाते हैं। और मसीह के वसीला से हम रास्तबाज ठहर जाते हैं। हालेलुया। हम मसीह के वसीला से रास्तबाज ठहरते हैं। आमीन जी। क्या लिखा है कि ताकि, गलतियों में, ताकि मसीह यीशु में आमीन। हालेलुया। तो यीशु मसीह के वसीला से हमें इब्राहिम की बरकतें मिल जाती। हालेलुया। आमीन। अगर हम मसीह में हैं तो कौन सी बरकतें? ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि बाप इब्राहिम की बरकत मिलना। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग, बहुत बड़ी बात है। आमीन। तो बरकतों को पाने के लिए, इब्राहिम की बरकतें पाने के लिए हमें मसीह में आना पड़ेगा, मसीह में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। हम अपने किरदार से मसीह को जाहिर करते हैं, हम अपनी बातों से। अगर मसीह में हैं तो बरकतें हैं, अगर मसीह में जिंदगी नहीं है ना तो बरकतें नहीं है। वो फिर मसीह कि इन टू नहीं है जी। तो ये बरकतें मसीह में आने से हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? क्योंकि तुम सब ईमान के वसीला से, हालेलुया, मसीह हमें क्या करता है? उसके फर्जंद बना रहा है। ये रूहानी बरकतें हैं। मसीह के वसीला से खुदा के बेटे होने की बरकत मिल जाती है। हालेलुया। कौन सी बरकत मिलती है? खुदा के बेटे और बेटियां होने की बरकत मिलती है। मसीह के बगैर नहीं, मसीह जिंदगी के बगैर नहीं। ईमान से उसको रिसीव किया करें कि मैं अब खुदा का बेटा हूं। हालेलुया। मैं कौन हूं? खुदा का बेटा हूं। हालेलुया। मैं अलग नहीं हूं, मैं जुदा नहीं हूं, हम सब एक हैं। हम राफा हालेलुया, हम फैमिली हैं। निशान ने गवाही क्या दी? उसका तो थे लेकिन है फैमिली है।
हालेलुया। हम क्या है? ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई गुलाम, ना मर्द ना कोई क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। तो मसीह यीशु हमें एक बना देता है। फिर हमारे अंदर जो है तो फर्के नहीं रहते, फर्क नहीं रहता। वो छोटा है, मैं बड़ा हूं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसकी तनहा इन्नी मेरी इन्नी मेरा अपना कारोबार दे ओदा तनहा दो तनहा दे ते मैं नहीं। फिर कोई फर्क दाऊद च ते साजे च कोई फर्क हाँ हालेलुया। मेरे च ते तुहाडे च कोई फर्क बिल्कुल फर्क नहीं। मैं भी वही हूँ और आप भी वही हैं। मैं भी उस पर ईमान रखने वाला हूँ, आप भी वही हैं। ना फिर कोई मर्द ते ना कोई नहीं नहीं ते औरतां नूं नहीं है हाँ नहीं नहीं ये औरतें नूं रहे ऐसा नहीं। बाइबल मुकद्दस यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं करती। वहां पर जब होंगे तो वहां पर कोई औरत और मर्द का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हाँ जी समझ गए हो ना? गुआंढी के अंदर ना बस बस हालेलुया। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? ना कोई मर्द ना कोई औरत, तुम सब एक हो। तो मसीह हमें एक बना देता है। तो फर्क खत्म, जुदाइयां फर्क, सारी चीजें फर्क, छोटा बड़ा का फर्क। हालेलुया। यीशु मसीह हमें एक बना देता है। फिर ऐसी सारे एक, हम में कोई दो वाली बात नहीं है। तो मसीह में रहकर प्लीज हमेशा अपनी लाइफ में मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। हम वाकई खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये हम जब मिलते हैं तो एक फैमिली की तरह मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं कि जब ये हमें पता चलता है कि वाकई हम खानदान के लोग हैं, हम एक ही खानदान के लोग हैं, हम सब की कीमत एक ही है। हालेलुया हालेलुया। हम सब की कीमत है और वो क्या है? उसी का खून, बेश बहा कीमत खून। हालेलुया। हम सब की कीमत ही एक कहते, फिर फर्क का था। हालेलुया। फर्क किसी चीज का नहीं है। अब मिसाल के तौर पर कि हम कितने हैं, सब या 10 चीजें ले लें, खरीद लें हाँ? और उनकी कीमत कितनी है? 100 रियाल, 50 रियाल या 1000 रियाल कर लें हाँ, 1 लाख रियाल कर लें लेकिन कीमत एक ही है, 1 लाख रियाल। मालिक एक ही है। हम जितने भी क्यों ना हों, हम सब की कीमत कोई फर्क नहीं। तो ये सब किसकी वजह से है? मसीह यीशु की वजह से है। हालेलुया। तो उसका क्या हुआ? हम पर फजल हुआ है। हालेलुया। उसका क्या हुआ? हम पर ऐ भाइयों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का हालेलुया। खुदा का बंदा पौलुस रसूल क्या कहता है कि ऐ भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह का हाँ जी तुम्हारी रूह के साथ रहे। आमीन। हालेलुया। तो मसीह के वसीला से हम पर फजल होता है। आमीन। हालेलुया। फजल किसके वसीला से होता है? मसीह के वसीला से। यीशु मसीह के वसीला से फजल है। आमीन। आमीन। मुकद्दसा मरियम को जब मैसेज आया तो क्या मैसेज आया? तुझ पर फजल हाँ, तुझ पर खुदा का तो फजल कब हुआ था? मसीह के वसीला से। हालेलुया। उससे पहले कभी पैगाम नहीं आया फजल का। पहले भी तो वो रास्तबाज थी, पहले भी उसकी जिंदगी खुदा के साथ थी, पहले भी वो खुदा की हजूरी में झुकने वाली, दुआएं करने वाली, रोजे रखने वाली हाँ पाकीज़ा, जिसको पाकीज़ा मुकद्दसा कहा गया, बाइबल मुकद्दस कहती है।
मुकद्दस थी, खुदा की बंदी। हालेलुया। बंदी का पता ना क्या आता है? लफ्ज का मतलब गुलाम। बंदी का मतलब बंदा जो होता है, बंदे का लफ्जी मतलब है गुलाम। पौलुस रसूल कहता है कि मैं मसीह का बंदा, मैं मसीह का गुलाम हूं, मैं मसीह के ताबे रहने वाला हूं। तो उसके बारे में लिखा है कि मैं खुदा की बंदी हूं। हालेलुया। मैं मसीह की, मैं खुदा की गुलाम हूं। इसीलिए तो उसने कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के हाँ हालेलुया। क्यों कहा? क्योंकि उसने कहा मैं तो खुदा की गुलाम हूं, जैसे मेरा मालिक कहेगा वैसा ही करो। इसलिए उसने कहा मेरे लिए वैसा ही हो, क्योंकि वो कहती मैं खुदा की, मैं गुलाम हूं अपने खुदा की, जैसा मेरा मालिक कहेगा वैसा ही मेरी जिंदगी में होने दे। आमीन हालेलुया। तो मसीह यीशु के वसीला से फजल है। फजल किसके वसीला से है? यीशु मसीह के वसीला से फजल है हमारी जिंदगी में। आमीन हालेलुया। जी क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से इब्राहिम की और फिर हाँ उसके वसीला से हम क्या बन जाते हैं? फर्जंद बनते हैं। और फिर हम मसीह में क्या हो जाते हैं? एक। यीशु मसीह हमें एक कर देता है, फिर हम जुदा नहीं रहते। एक खानदान के लोग, उसके लोग बेटे, उसके बेटियां और बेटे बन जाते हैं। और फजल किसके वसीला से है? यीशु मसीह के वसीला से। तो हम उसके वसीला से हैं और मसीह के वसीला से हमें उम्मीद है। यीशु ही उम्मीद है, उसके वसीला से उम्मीद है, उसकी वजह से हमें उम्मीद है। हमें उम्मीद क्या है कि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। किसके वसीला से हमें उम्मीद है? कौन आने वाला है? तो उसके वसीला से हमें उम्मीद है। हमारी सारी उम्मीदें यीशु मसीह से हैं। वो चाहे दुनिया में रहकर हो या आसमानी हो, हमारी सारी जो बरकतें हैं, उम्मीदें जो हैं, वो यीशु मसीह से हैं। जो यीशु मसीह से उम्मीद रखता है, हालेलुया, हमें यीशु मसीह से उम्मीद रखनी है। 13वीं आयत में क्या कहता है कि और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। हालेलुया। किसके वसीला से? यीशु उसी में, यीशु में जिसका तुमने कलाम सुना, उसी में तुम्हारी निजात, उसी में निजात की खुशखबरी, उसी में रूहुल कुद्दस की मोहर। हालेलुया। किस में? यीशु मसीह में। इफिसियों पहला बाब 12वीं और 13वीं आयत। हालेलुया। तो उसी में ये बरकतें हैं। हालेलुया। दूसरे बाब में लिखा है और मसीह में शामिल करके उसके साथ जलाया, आसमानी मकामों पर उसके साथ बैठाया। तो मीन्स के यीशु मसीह के वसीला से हम आसमानी मकामों तक पहुंच सकते। हालेलुया। किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, आगे जल्दी और इसके फाइनल पे पहुंचेंगे। आमीन हालेलुया। सो दूसरे बाब की 13वीं आयत में क्या लिखा है? मगर तुम जो पहले दूर थे अब यीशु मसीह के वसीला से क्या हो गए हो? नजदीक। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारे और खुदा के दरमियान नजदीकी पैदा कर देता है। हालेलुया। नजदीकी कौन पैदा करता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के वसीला से हमारे दरमियान क्या आ जाती है? नजदीकी। हम खुदा के नजदीक हो जाते हैं, हम खुदा बाप के करीब हो जाते हैं। हालेलुया। किसके वसीला से? पहले तुम कहाँ थे? दूर थे। हाँ, पहले तुम दूर थे, अब मसीह यीशु के वसीला से, उसके खून के वसीला से, उसके सबब से
اب تم क्या हो गए हो नजदीक हो गए हो। हाँ पहला इजाजत नहीं थी जी। यहाँ पर खड़े होने की इजाजत नहीं। ना रीमा खड़ी हो सकती थी ना मैं खड़ा हो सकता हमें यहाँ पर खड़े होने की इजाजत हाँ 6 इंच का मोटा पर्दा इतना मोटा पर्दा कोई देख भी ना सकता था किसी की निगाह भी ना पड़ती थी हालेलुया और आज देखो मैं यहाँ पर हालेलुया हालेलुया आमीन ये किसके वसीले से हुआ यीशु मसीह के खून के सबब से Blessing of Christ. ये मसीह की ब्लेसिंग है मसीह यीशु की कुदरत की ब्लेसिंग है हालेलुया आमीन तो कैसे जी मसीह से हमारी उम्मीद और मसीह से क्या हुआ हमारी नजात की खुशखबरी हालेलुया और फिर आसमानी मकामों तक ले जाना यीशु मसीह के वसीला से हालेलुया और फिर खून के स्वाब से यीशु मसीह के वसीला से नजदीक आमीन हालेलुया यीशु मसीह के वसीला से नजदीकी है हमारी जिंदगी में आमीन हालेलुया तो मैं जल्दी से चाहता हूं कि आप आगे चले जाएं और मैं कंक्लूजन पे लेकर आना चाहता हूं आपको हालेलुया तो जल्दी से हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि ये कुछ हवाला जात है मैं चाहता हूं कि मैं अगर आप लिखना चाहते हैं इफ यू वांट टू राइट डाउन तो लिख लें सो लिख लें जल्दी से लिख लें तसल्लीकियों 5वां बाब उसकी 18वीं आयत हर एक बात में मसीह की शुक्रगुजारी करो मसीह यीशु में तुम्हारे खुदा बाप की हाँ खुदा बाप की मर्जी यीशु मसीह में है खुदा बाप की मर्जी इसमें शामिल हो जाती है तिमोथियस को लिखता है खत और वो कहता है कि मसीह में क्या है बड़ी दलेरी हालेलुया मसीह के वसीला से हमें दलेरी मिलती है तिमोथियस को लिखता है हाईलाइट कर लें अगर समझ नहीं आ रही तो मसीह के वसीला से दलेरी और दूसरा तिमोथियस में लिखे कि पौलुस की तरफ से उसने जिंदगी के वादा के मुआफिक मसीह में हालेलुया जिंदगी का वादा हालेलुया मसीह के वसीला से क्या है जिंदगी का लाइफ मसीह के वसीला से लाइफ है जिंदगी है खुदा बाप की मर्जी है शुक्रगुजारी है यीशु मसीह के वसीला से दलेरी है हालेलुया जी और फिर तिमोथियस को क्या लिखता है आमीन क्या मिलता है इसी सबब से बरगजीदा लोगों की खातर मैं सब कुछ ताकि वो भी नजात को हासिल करें यानी कि मसीह के वसीला से नजात है जो मसीह में है अब्दी जलाल में हाँ जी अब्दी जलाल और हाँ वाइज हाँ आगे दूसरा तिमोथियस हमें अक्ल बख्शता है खुदा wise for salvation through the faith which is in Christ कि जो मसीह में हमारा जो ईमान है खुदा हमें अक्ल दनाई बख्शता है कि कैसे निजात को हासिल करना है हालेलुया मसीह में निजात को कैसे हासिल करना है जी खुदा का जब हम मसीह में आते तो खुदा हमें दलेरी देता है कि हम सच्चाई को बयान कर सकते हैं दलेरी से हाँ अगर मुझे वो कहता है अगर जे मुझे मसीह में बड़ी दलेरी तो है कि तुझे मुनासिब हुक्म दो हाँ जी जब मसीह में होते हैं तो हमें दलेरी आ जाती कलाम सुनाने की सच बोलने की दलेरी आ जाती है मुनासिब हुक्म मीन्स सच बोलना दलेरी खुदा का कलाम बयान करने की तो आखिर में हम पहुंच चुके हैं तो आए कंक्लूजन पे देखते हैं कि कंक्लूजन इसकी क्या है मैं चाहता हूं कि यहां पर आ जाए कंक्लूजन जी
कंक्लूजन क्या है आखिर में? टू एंजॉय मस्ट बी हाँ हालेलुया। तो यहाँ पर आप इन ना लिखे, इनटू लिखे, यहाँ पे इनटू लिखे। तो अगर हमें मसीह की ब्लेसिंग को, मसीह की बरकतों को अगर आपने इंजॉय करना है अपनी लाइफ में, तो मसीह में आना जरूरी है। हालेलुया, मसीह में आना जरूरी है। ये लास्ट बातें हैं, कंक्लूजन है, एंड है कि इसका कंक्लूजन क्या है सारी बातों का। और बैप्टिज्म इज द ओनली वे दैट scriptures tells us how to get into Christ. हालेलुया। तो बैप्टिज्म जो है, जब बैप्टिज्म लेते हैं तो ये हमें बताता है कि मसीह में कैसे आना है। मसीह में कैसे, बैप्टिज्म का मतलब क्या है? डूबना, मसीह में मरना, उसकी मौत में, मसीह की मौत में शामिल होना और उसके साथ जी उठना। हालेलुया। तो यही हमें बैप्टिज्म सिखाता है कि अगर हम बैप्टिज्म लेते हैं तो वो याद रखें, हमने जितनों ने बैप्टिज्म लिया है आज के बाद गुनाह के एतबार से मुर्दा, और फिर हमें आसमानी बरकतें मिलेंगी, फिर हमें यीशु मसीह की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हालेलुया। तो फिर आगे क्या लिखा, आखिरी बात, दोज outside of Christ do not have these even हाँ बेशक वो कहते नहीं खुदा का बड़ा शुक्र है, हाँ बड़ा खुदा का शुक्र है। कैसे? यीशु मसीह के बगैर बेशक वो कहते रहेंगे। तुम सुने होना है, गल करो ना, हाँ जी क्या, हाँ जी बड़ा खुदा का शुक्र है। वो कभी पूरे साल च नहीं गिरजे बड़े की कहता है हाँ की किस गल वास्ते? वो काम बहुत है, हाँ? काम गिरजे नहीं आंदा, नहीं काम बहुत है, बड़ा खुदा दा की क्यों नहीं? अच्छा नहीं, वो काम बहुत है, बड़ा खुदा दा वो नहीं बड़े बड़ी जगह भी ले ली, फलाना भी ले लिया, वो भी कर ले, हाँ क्यों? खुदा दा बड़ा हाँ। वो ये समझते हैं कि शायद ये मसीह की ब्लेसिंग मेरी जिंदगी में है, दुनिया की ब्लेसिंग। यीशु मसीह के कितने प्लाट थे? सही दसे अजय, यीशु मसीह को कितने प्लाट थे? कोई भी नहीं सी। लुमड़ियों के बट होते हैं, लेकिन इब्न आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं। सर रखना से कितनी भी जगह चाहिए? नहीं चौकी दसी ये सर की जो ये टॉप होता है ना, एक इंच के ही बराबर। हाँ ये 1-2 इंच बस, इन्ना कुछ सर सिर्फ सीधा रखो ना, सिर्फ इन्ना कोई हिस्सा ही लगता है सिर का थल्ले। हाँ कितनी कुछ जगह? 2 इंच लगा लो। आसमान जमीन का खालिक मालिक वो, ते जमीन ते आके उन्हें एक घर भी ना खरीदया, केड़ा यीशु हाँ ਉਹਦੇ ਨਾਲ तो फिर मैं ही चंगा, मेरे को कितने प्लाट ने, हाँ कितने प्लाट ने, मेरे को ज्यादा नहीं, मेरे को तो कोई घर। वैसे बात कर रहा हूँ, जो लोग ऐसा सोचते हैं, हाँ मेरे को तो इन्ने प्लाट ने, मेरे को तो इन्ने बड़ा खुदा दा ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਜੀ ਯਸੂ ਬਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਸੂ ਬਾਪ ਨੇ, हाँ आपने सुना होगा, हाँ वो कहते यसु बाप ही ने, हाँ की कहते ने यसु बाप, हाँ ये तो फड़ लो कि ये किन्ना को वाकफ है यसु, हाँ इस गल तो समझ जाओ कि वो किन्ना को यसु तो वाकफ है। जेड़ा यसु नु की कह रहा है, तो यसु की है चर्चा फराफा बोले यसु की है हालेलुया। ओ की कह रहे यसु नु, ते इन्ना को यसु दा शुक्र है, यसु बाप दा बड़ा शुक्र है कि इन्ने प्लाट बन गए हैं। ये तो हिसाब ला लो कि ये बरकत जेड़ी यसु दी नहीं, फिर
ਇਹ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਲਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਵੇਂ ਯਾਰ किसे ना बनना है। हालेलुया। तो याद रखें कि हमें मसीह की बरकतों को लेना है अपने साथ। हालेलुया। मसीह की बरकतों को लेना है। तो आखिरी बात क्या है कि आर यू इन क्राइस्ट? हालेलुया। क्योंकि हमने ये बात सीखी कि अगर मसीह में हैं तो बरकतें हैं, अगर मसीह में नहीं हैं तो बरकतें नहीं हैं। आउट ऑफ क्राइस्ट देयर इज नो ब्लेसिंग। मसीह के बाहर हैं तो बरकतें नहीं हैं, अगर मसीह में हैं तो ये बरकतें हैं। हालेलुया। अपने किरदार से, अपनी बातों से, आज अपनी लाइफ से ये देखें कि क्या मैं मसीह में हूं। हालेलुया। अगर नहीं है, आज के बाद ये वादा करें कि मैं मसीह में जिंदगी गुजारूंगा। और फिर आपने गौर करना है, लिख लें, कोरे कागज से शुरू कर लें और फिर काउंट करना शुरू कर दें, फिर बरकतें आना शुरू हो जाए। हालेलुया। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे और हम सब मसीह में जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। आमीन। आमीन।